Hello students. Today we are going to learn the new chapter from unit 2nd, and the chapter name is the nature created man and women as equal. मतलब नेचर ने मैन और वुमेन को इक्वल ही बनाया है. So that about that we are going to understand in all the details. Now see, first we have given a warming up activity. Study the pictures below and note down the differences. Means what are the picture, whatever pictures are given, we have to understand it in details, and in both the pictures what are the differences that we have to understand. Now see, A, there are two images are given. In that, in first image you can see here, one boy is going to school and one girl is going to home by taking a water pot on her head. And in beside the picture, besides that picture, another picture is there, that both the girl and boy both are going into the school. So that differences we have to analyze and that we have to write down over here. ये हमें यहाँ पर लिखना है. Then second one. Now see here, one woman is there. She has three pots on her head. Along with that, she has a baby also. And in second picture you can see that there is also one woman and she is a teacher and she is teaching to the students. So see, these are the differences between the two images. Now B, we can see that if a woman can get a chance, she can be a teacher. If she has studied well, then she can be a teacher also. If in the first picture, as it has been said that, like see, in this picture you can see that here it has been given the explanation of this image and this image. It is going to be the same one. Now see, अगर कोई लड़की बचपन से अगर पानी भरने का काम कर रही है तो वो घर हाउस होल्ड का ही काम कर पाएगी, और जो बच्ची स्कूल में गई आगे चलकर वो क्या बनी है, टीचर बनी है. मतलब शी कैन हैव डिफरेंट प्रोफेशंस ऑल्सो. शी कैन गेट अ चांस इफ शी गेट्स अ चांस. So we have to think about that, if we have to give the chance to the women also as equal to a man. Now the next picture, that is B. Now write what you observe in the following two pictures. अभी यहाँ पर हमें देखना है कि ये दो पिक्चर्स में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए, मैन खाना बना रहा है, वीमेन उसकी हेल्प कर रही है. यहाँ पर गर्ल स्टडी कर रही है, तो मैन यहाँ पर वो लड़का यहाँ पर सब्जियाँ धो रहा है. मतलब यहाँ पर अगर बचपन से लड़का अगर सब्जी धोने का काम करेगा, खाना पकाने का काम करेगा, तो वो आगे चलकर भी वैसे ही करेगा. मतलब एजुकेशन कैन मेक्स द चेंजेस. Even in that in the same image you can see that the girl is studying, so she becomes any officer. So ये changes हमें यहाँ पर नज़र आते हैं. It is very easy to understand. I hope you all have understood it in a better way. Now see, which pictures reflect gender equality, write their numbers. अभी कौन से पिक्चर में जेंडर की इक्वालिटी दिखती है वो हमें यहाँ पर लिखना है. सो सी, फ्रॉम द बिगिनिंग यू कैन सी हियर द फर्स्ट इमेज, बोथ गर्ल एंड बॉय बोथ आर गोइंग टू स्कूल हियर. Even in the second, here boy and girl is studying in a school. Here in B also, the man and woman are sitting together in a meeting. So that there is also a gender equality, we can say that. Write their numbers. वो आप वहाँ पर उसे numbers दीजिए और आप लिखिए. Then write down any two slogans on gender equality. जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हमें कुछ स्लोगन्स लिखने हैं यहाँ पर. यू कैन ट्राई इट. इवन वी नो दैट मुला मुलीमध्ये करू नका भेद. तो इस तरह से जो स्लोगन्स होते हैं, इट इज़ इन मराठी, लाइक दैट वी हैव टू राइट डाउन इन इंग्लिश. सो इट इज़ ऑल्सो ईजी, यू कैन फाइंड आउट इट. नाउ सी,
the practical chapter. Nature created man and women as equals. The house of its surroundings, the house and its surroundings are a sight of peace in the early morning of April. मतलब अप्रैल महीने के डेज थे और घर के आसपास का सराउंडिंग कैसा था, शांत था. और ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग वी ऑब्जर्व द साइलेंस इन आवर सराउंडिंग. इट नेस्टल्स by the side of a small stream of a crystal clear water. मीन्स नेस्टल्स मीन्स बिसाइड्स, नियर बाई, मतलब नज़दीक हम बोल सकते हैं. तो क्रिस्टल क्लियर वाटर, क्रिस्टल क्लियर मतलब अगर उसमें हम कुछ भी डालते हैं तो उसके नीचे के पत्थर भी हमें दिखते हैं. तो इतना क्लियर पानी वहाँ पर था. द स्ट्रीम ट्रबल्स द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे. अभी वहाँ से जो पानी जाता है एक 2 miles तक वो जाता है आगे तक. देर इज़ अ स्ट्रेच ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड. और वहाँ पर आगे चलकर हंड्रेड्स ऑफ एकड़ फर्टाइल लैंड है, मतलब जो कि काफ़ी सुपीक है. वहाँ पर खेती की जाती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छे से मिलते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं. तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है फर्टाइल लैंड. Now you can see there again 100 of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers. Rolling means they are getting a gentle slope, extending in long gentle slopes. मतलब लंबा gentle slope है, मतलब धीरे धीरे, बहुत फास्ट स्लोप नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आते हुए. येलो मस्टर्ड फ्लावर्स, और वहाँ पर क्या है, येलो मस्टर्ड फ्लावर्स है. बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस अ गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस. और गार्डन क्या है, तो उस घर के सामने ही है. एंड द हाउस अ गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस. ट्रीज ऑफ मैनी काइंड्स बियरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड ऑफ द हाउस. अभी यहाँ पर कैसे है, तो अलग अलग तरह के फ्लावर्स और फल वो अलग अलग तरह के ट्रीज़ के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट, और ये कहाँ पर है, घर के आसपास है. ट्रीज ऑफ मैनी काइंड्स बियरिंग फ्लावर्स एंड वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हाउस. घर के आसपास बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स के पेड़ थे और उसके ऊपर फ्रूट्स भी थे. The courtyard smells of jasmine which blooms in bunches of white pearls. अभी वहाँ पर क्या था, तो जास्मिन के फ्लावर्स थे और उसकी जास्मिन की सुगंध कोर्टयार्ड, मतलब जो कि हमारा आंगन होता है उसे हम बोलते हैं कोर्टयार्ड. वहाँ पर फ्रैगनेंस फैला हुआ था जास्मिन का. फ्रैगनेंस मतलब स्मेल ही होता है, जो सुगंध बोलते हैं अपन उसको, वो. The fragrance mingles with the thin smoke that rises from sweet smelling incense. अभी इंसेंस स्टिक, जो कि आप अगरबत्ती जलाते हैं हम, इंसेंस स्टिक्स, उससे जो स्मोक निकल रहा है वो धीरे धीरे फैल रहा है. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, जो घर का जो माहौल है वो कैसा बन गया है, काफ़ी अच्छा बन गया कि उस फ्रैगनेंस की वजह से. The burning incense sticks are glowing at the altar of God in the middle of the courtyard. अभी होता कैसे, हमारे आंगन में हम देखते हैं कि तुलसी का पेड़ होता है. अल्टर मतलब क्या, जो जहाँ पर हम भगवान की मूर्तियाँ वगैरह रखते हैं ना, छोटे छोटे घर में जिनकी हम पूजा करते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्टर. तो वो मिडल ऑफ कोर्टयार्ड था और वो बर्निंग इंसेंस वहाँ पर थी. Ashangbi is in her reading room and is busy writing an article. अशांगी एक लड़की है और अशांगी एक लड़की है और वो अपने स्टडी रूम में, रीडिंग रूम में बिजी थी एक आर्टिकल लिखने में. She is a middle-aged mother of 3 children. No, she is not a girl, she is a woman. And she has 3 children. And a journalist and a woman's right activist. अभी वो उसके साथ साथ
जर्नलिस्ट भी थी और वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी थी। मतलब जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती है उसे हम बोलते हैं वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। लैंथोई हर यंगेस्ट डॉटर, अभी उसके यंगेस्ट डॉटर का नाम क्या था? लैंथोई। एंटर्स द रूम, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत ही होशियार लड़की है, बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है। टुडे शी लुक्स thoughtful and she takes a seat by her mother's side। आज वो कुछ सोच में नज़र आ रही थी, मतलब कुछ सोचते सोचते वो उसकी मम्मी के बाजू में आकर बैठ गई, मतलब उसके मदर के साइड में आकर बैठ गई। एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड अशांगबी लविंगली आस्क, अभी उसके साइड में बैठने के बाद में उसकी मम्मी उसको पूछती है, मतलब अशांगी उसे पूछ रही है, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माई डियर, क्या आपने आपकी पढ़ाई पूरी की है? यस मदर, आई फिनिश्ड एट इट लास्ट नाइट, आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट, मतलब वो बोलती है कि मम्मी मैंने जो मेरी स्टडी है वो लास्ट नाइट को ही फिनिश कर ली है। टुडे बीइंग संडे, आज क्या है? तो संडे है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग टुडे, मतलब आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ, जो जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं करनी चाहती हूँ। टुडे बीइंग संडे, क्योंकि आज संडे है इसलिए। लैंथोई सेज एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स, अभी वो उसकी मम्मी का रिस्पॉन्स के राह देख रही है कि मेरी मम्मी अभी यहाँ पर मुझे क्या बताएगी कि क्या करना चाहिए। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, अशांगी आस्क हर, अभी अशांगी ने उसे पूछा कि टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, प्लीज़ मुझे आप बताओ। अगर आप मुझे बताओगे तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, मैं आपकी यहाँ पर कुछ मदद करने की कोशिश करूँगी। Now we know that she was in the response of her mother. What does she say? अशांगी आस्क हर क्वाइट अम्यूज, मतलब आश्चर्यचकित होकर वो उसे पूछ रही थी, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, मुझे बताओ। मदर, टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोई लिली हाउस एज अ स्पीकर इन अ symposiums at our school। Symposiums मतलब a meeting at which experts have discussion on a particular subject, मतलब एक वो उनके स्कूल में सिरोई लिली हाउस हाउस में एज ए स्पीकर वो जाने वाली थी, वहाँ पर वो बोलने वाली थी। द टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड मैन एंड वीमेन एज इक्वल्स, और जो टॉपिक है वो कौन सा है? भगवान ने इंसानों को मतलब मैन को और वीमेन को दोनों को इक्वल बनाया है, उसके ऊपर मुझे यहाँ पर बोलना है। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विथ मी, क्या आप मुझे आपका कुछ वक्त दोगे, तो जिसके माध्यम से क्या होगा, मुझे आपके डिस्कशन के माध्यम से कुछ चीज़ें समझ में आएगी। लैंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर, अभी लैंथोई क्या कर रही है? तो उसकी मदर को प्रेस कर रही है, मतलब रिक्वेस्ट करने की इसमें बोल रही है। परसुडेट सम वन टू डू समथिंग, मुझे बताइए कि व्हाट शुड आई डू। लैंथोई हैड जस्ट हैड अ डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक, अभी लैंथोई ने जस्ट उसके पापा के साथ में डिस्कशन किया था ऑन द सेम टॉपिक। अभी टोम्बा हर फादर, अभी टोम्बा क्या है? उसके पापा का नाम है। हर फादर इज़ अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर, अभी उसके जो पापा थे वो इतने अच्छे हस्बैंड थे कि उसकी मम्मी को वो अदर एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते थे, और वो लविंग फादर थे। ही इज़ अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर, इवन वो भी क्या थे? एक लॉयर भी थे, अलॉन्ग विद दैट ही वॉज अ सोशल वर्कर, मतलब वो समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करते थे, जो सामाजिक इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर वो काम करते थे। हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वुमेन, और वो क्या करते हैं? जो वुमेन्स के जो कुछ केसेस आते थे उसके ऊपर भी वो क्या करते थे? तो केसेस लेते थे।
ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, और उन्हें हमेशा अपने वाइफ के ऊपर क्या होता था, गर्व महसूस होता था। द टू डॉटर्स एंड द सन, अभी उनको दो बच्चे, दो लड़कियां और एक लड़का था। इन टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टू द सोसाइटी एट लार्ज। अभी वो क्या करते, जब जब ज़रूरत पड़ती है उसके पापा, तो वो बच्चों को भी मदद करते हैं, इवन वही वो उसकी मम्मी को भी मदद करते हैं। और सोसाइटी कैसी थी उनकी, बहुत बड़ी थी। ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मैन्स वर्क एंड अ वुमेन्स वर्क एनीवेयर, ही शेयर्स। अभी उसके पापा ऐसे थे कि वो कभी भी किसी काम में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, कि ऐसे नहीं है कि खाना बनाना सिर्फ लेडीज़ का ही काम है, तो ऐसे कभी भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। तो वो हर काम में जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करते थे। Equally with he shares equally with his wife in doing the household chores, मतलब जो घर का काम करते हैं उसमें भी वो उनका शेयर करते हैं। अगर वो उनकी वाइफ अगर खाना बना रही है तो वो बर्तन धोएंगे, इस तरह से वो काम में मदद करते थे। लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड फीडिंग द चिल्ड्रन, had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been a successful professional. अगर वो उनकी वाइफ को इस तरह की मदद नहीं करते थे तो शायद से आज जितनी उनकी वाइफ सक्सेसफुल प्रोफेशनल है उतनी वो नहीं बन सकती थी। द होल हार्टेडली मतलब बड़े दिल से, wholeheartedly believes in equality irrespective of class, religion and gender. अभी उन्होंने इक्वालिटी मतलब सभी में फॉलो की है, क्लास में मतलब वी नो दैट इन इंडिया अर्लियर डिफरेंट क्लासेस वर देयर, लाइक ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, like that different classes were there, high class, lower class, like that. Religion, Hindu, Muslim, Parsi, Jain, Buddhist, so such kind of religion, and gender also, male, female. So he didn't have any kind of discrimination in such kind of things. Equality he was following. In his discussion with his daughter, he laments मतलब expresses grief and sorrow. अभी अभी उन्हें दुख था कुछ चीज़ों का, तो वो कौन सा किन चीज़ों का दुख था अभी हम यहाँ पर देखते हैं। ओवर द ग्रेट इनजस्टिस डन ऑन वुमेन इन द सोसाइटी, अभी जो इनजस्टिस किया गया है इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स के ऊपर, उसके बारे में उनको बहुत बुरा लगता था और उसी का उनको क्या था, दुख था। टेलिंग हर, माई डियर चाइल्ड, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वालिटीज़, और वो उनके बेटी को बताते हैं कि बेटा दुनिया में आज भी बहुत सारी जगह पर इनइक्वालिटीज़ है। वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, और हमें आज क्या करना होगा, तो इक्वालिटी को लाने के लिए अलग अलग वेज को ढूंढना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम मेन और वुमेन में इक्वालिटी बना सकते हैं, देख सकते हैं। हर फादर्स वर्ड्स आर स्टिल रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ लैंथोई, और उसके पापा के जो वर्ड्स थे वो अभी भी उसके कान में घूम रहे थे। कौन से वर्ड्स थे, माई डियर चाइल्ड, द वर्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये वर्ड्स, और इसके साथ साथ वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये उनके पापा के वर्ड्स थे जो उनके माइंड में अभी भी घूम रहे थे। देन एंड शी टेल्स हर मदर ऑफ वॉट हर फादर हैज़ टोल्ड हर, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें वो उसकी मम्मी को शेयर करती है, मम्मी से बताती है कि पापा ने मुझे ऐसे ऐसी चीज़ें बताई है। सो ये तो मैं वहाँ पर बताने ही वाली हूँ, उसके बाद में मुझे भी और भी कुछ चीज़ें चाहिए। अगर ये बेहतर होगा कि अगर आपका कुछ समय मुझे दो तो मैं वहाँ पर अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाऊँगी और एज अ स्पीकर बोल के अच्छे से अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। दैट वाज हर इंटेंशन। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ, appreciative of her husband for his views। अभी असम्बी सेज, अभी असम्बी उसकी मम्मी का नाम है, तो वो उसके हस्बैंड को अप्रिशिएट करती है, बोलती कि वाओ
हिज थॉट्स आर वेरी नाइस, वेरी क्लियर। अभी वो क्या बोलते हैं देखेंगे। योर फादर इज़ राइट, इन नो सोसाइटी डू वुमेन एन्जॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एन्जॉयड बाई मेन। अभी उसके पापा बिल्कुल सही थे और वो बोलते हैं कि सोसाइटी में जो सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी विमेंस को, वो नहीं मिली। तो जितने अपॉर्चुनिटीज़ मेन को दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू मैन, वीमेन डिड नॉट एन्जॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ बिकॉज, अभी देखिए यहाँ पर, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वालिटी एट होम। ये अंडरलाइन कर लेना है और देखना है ये किस वजह से, कि तुम्हारे पापा की वजह से कभी भी मुझे अपने आप में डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी हमारे घर पे कभी भी फेस करने की नौबत नहीं आई। बट आउटसाइड आवर होम, बट हमारे घर के बाहर, आई हैव सीन दैट women have been subjected in many ways. It is against the will of God. God has sent men and women to our earth to share the joys and sorrows of life equally. अभी वो बोलती है कि जब भी वो घर के बाहर जाती है, सो many she had seen that, she had observed that many women have been subjected in many ways, अलग अलग वेज से वो सब्जेक्टेड है। इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, और ये भगवान के इच्छा के अगेंस्ट है, मतलब विरुद्ध है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। God has sent men and women to our earth to share the joys and sorrow of life equally। मतलब जो लाइफ का, हमारे जीवन का जो है दुख है और सुख है, वो इक्वली हमने शेयर करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने स्त्री की और इंसान की रचना की है और इक्वली उनको शेयर्स देने चाहिए। टू शेयर हिज ब्लेसिंग्स एंड टू एन्जॉय द बाउंटी ऑफ नेचर इक्वली। अभी उसके ब्लेसिंग्स हमें सेम मिलने चाहिए और नेचर्स को भी इक्वली हमें एंजॉय करने देना चाहिए। बाउंटी मतलब उसे ब्यूटी ऑफ नेचर भी हम बोल सकते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर। दिस इज़ वॉट यूर टॉपिक मीन्स, अभी यही शायद से तुम्हारा टॉपिक है। सो शी हैड एक्सप्लेन हर इन दिस मैनर। Assembly knows well that men and women are equal. She knows it very well that men and women are equal. Women who are half of the human race. अभी वो कैसे है, बहुत ह्यूमन रेस में आधे प्लेस पर है, हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस, आर एज इम्पोर्टेंट एज मेन। और उन्हें पता है कि जिस तरह से मेन इम्पोर्टेंट है उसी तरह से वीमेन भी इम्पोर्टेंट है। शी राइट्स एंड टॉक्स अबाउट सच टॉपिक्स, वो ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बोलती है और ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में लिखती भी है। वीमेन, हाँ, लिखती भी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट मीन्स दैट नेक्स्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ, हर डॉटर थॉट अ चाइल्ड also understands well that her mother is not a person of lesser quality than her father। अभी उसे पता है कि उसके डॉटर्स भी क्या करते हैं, उसके चाइल्ड भी क्या करते हैं, तो वो समझते हैं कि जिस तरह से पापा इक्वली ज़रूरी है उस तरह से मम्मी भी इक्वली ज़रूरी है। तो कोई भी लेसर क्वालिटी किसी की भी नहीं है, मम्मी भी इम्पोर्टेंट है तो पापा भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। शी सेज आवर होम इज़ फुल ऑफ लव विथ योर मदर। और वो बोलती है कि हमारा घर कैसा है, तो फुल ऑफ लव, मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्यार है। किसकी वजह से, तुम्हारी मदर की वजह से। सो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ योर फादर सपोर्ट एंड हीज थिंकिंग, क्योंकि उनके पापा इक्वली नहीं सोचते थे इसलिए। द मदर बीम्स विथ जॉय एट द वर्ड्स ऑफ हर डॉटर। अभी ये वर्ड्स सुनने के बाद में, ये जो वर्ड्स थे ये उसके डॉटर्स के थे, और ये वर्ड्स सुनने के बाद में उनकी मम्मी काफ़ी खुश हो जाती है। सो
लैंथोई की मम्मी काफ़ी खुश हो जाती है। द मदर बीम्स विथ जॉय एट द वर्ड्स ऑफ हर डॉटर, वो काफ़ी खुश हो जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मदर इज़ द फाउंटेन ऑफ लव इन अ फैमिली। अभी इस मैटर में, इस फैक्ट में, रियल फैक्ट में, इस जीवन के रियल फैक्ट में, तो मदर क्या है, तो फाउंटेन ऑफ लव। फाउंटेन मतलब आपको पता होगा, फाउंटेन जो अलग अलग जगह पर होता है, पानी उसमें से ऐसे बाहर बहता है, ऊपर से ऐसे आता है, तो उसे हम बोलते हैं फाउंटेन, वाटर फाउंटेन। तो जिस तरह से पानी वहाँ पर फैलता है सभी तरफ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो मम्मी के पास से लव पूरे फैमिली में, एंटायर फैमिली में फैल रहा है। दिस बाउंड ऑफ लव इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन विथ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। अभी ये जो बाउंड है, ये जो प्यार एक साथ है, तो ये दुनिया में किसी भी चीज़ से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बियॉन्ड ऑफ कंपैरिजन विथ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में हम किसी के साथ में भी इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देन anything else in the world. It is because of this that motherhood has been glorified and women accept the challenges in life to become a mother. अभी praise, glorified मतलब क्या, praise, that motherhood has been glorified. अभी ये जब कोई लेडी अगर माता बनती है, तो वो जो दर्द सहती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। एंड women has accept द चैलेंजेस इन द लाइफ टू बिकम अ मदर। और मदर क्या करती है, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वो उसके जीवन में मदर बनती है। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो कि किसी और ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो डायरेक्टली वो मदर ने एक्सेप्ट किया है। शोइंग डीप अफेक्शन, असम्बी कंटिन्यूज। अभी काफ़ी डीप अफेक्शन मतलब काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती है और बोलने में काफ़ी डेडिकेशन हो जाता है, उसीलिए बोला गया, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया अफेक्शन। असम्बी कंटिन्यूज, पायनियर वुमेन्स टेस्टिफाई टू द इक्वालिटी ऑफ वुमेन विथ मैन। पायनियर वुमेन मतलब देखिए, अ पर्सन who is among the first to take up a cause especially in a new region। मतलब एक हाईएस्ट पोजीशन पर होने वाला, ऐसा हम उसे बोल सकते हैं पायनियर, जो कि कुछ चेंजेस लाने के लिए होता है। टेस्टिफाई मतलब प्रोवाइड प्रूफ और एविडेंस। टेस्टिफाई मतलब वो साबित करके साबित करते हैं कि वुमेन भी कैसे है, इक्वल है एज कंपेयर टू मैन। And we know that in our society we have observed that many people, many women are there, they have proved themselves. In 12th exam also we can see, in 10th standard also we see that women are, means girls are too ahead as compared to boys. And even in different sections also, different sectors also, women are actively participating at the highest designations also. We know that in ministry also there are many women, they are holding the highest position, like our finance minister Sitaram, that lady's name Sitaram is there। तो हाईएस्ट पोजीशन पर अलग अलग जगह पर लेडीज़ थी। यू नो दैट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, these are the having highest position, means earlier Indira Gandhi was there at the position। Even many women are there, pilot also, uh, social activist also, teachers also, principals also, even lecturers also, engineers also, and doctors also. There is not a single field, in that field women are not there. Even in science field also you can see that Sunita Williams, the Indian name, Kalpana Chawla, many are there. They have performed their talent in front of the world, and world has recognized them, and now also we are recognizing them in a better way. So they have proved themselves, women have proved themselves that they are equal as compared to men। Lanthoi has been fascinated by the stories of pioneer women। अभी लैंथोई ने क्या की, तो जो पायनियर वुमेन्स है उनकी स्टोरीज पढ़ने के बाद में वो फैसिनेट हो चुकी थी, मतलब काफ़ी मोटिवेट हो चुकी थी, और वो पढ़ने के लिए ईगर भी थी, ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर। हर ग्रैंड मदर हैड नरेटेड मेनी
many stories of the brave queens like Lanthoi, Lanthoi Gambi and Kuranga na Yani, who were as brave as kings. मतलब हम अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो ऐसे बहुत सारी क्वींस है, उन्होंने अपने किंगडम को अच्छे से हैंडल किया है, लाइक अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी. So these names we know it very well. I think these names belongs from the different states, so because of that only it is a different one names. Who were as brave as kings. There were also many brave women among the common people. अभी कॉमन लोगों में भी बहुत सारी brave women थी. Even in our freedom struggle also we have seen that many women have actively participated in the freedom struggle also, like Sarojini Naidu, one of the one of the women who has participated in the freedom struggle also. Apart from her, many more are there, but that names I am not getting exactly. Now, these women, as her grandfather narrated, were makers of home, family, society and the nation. अभी जैसे कि उसके ग्रैंड मदर ने उसको बताया था कि ये जो विमेन है ये सिर्फ फैमिली मेकर्स ही नहीं है, तो घर को बनाती भी है, फैमिली को भी बनाती है, इवन सोसाइटी में चेंजेस लाती है. Even they can make the changes in the nation, they can create a nation, they can create a new nation also, we can say that. They were civilizing influence, at the same time. अभी उसी वक्त civilizing influence भी हो रहा था. Then they were also adventurers who climbed their shares in free land, plucked and rising crops in their own hands and drove cattle. अभी वो तो इतने अच्छे हैं, मतलब वो कभी भी कहीं पर भी कम नहीं पड़ते हैं. मतलब फ्री लैंड मतलब जहाँ पर भी ज़मीन है वहाँ पर वो खेती भी करते हैं. प्लफ्ट मतलब जो खेती का एक औजार होता है उसको भी चलाते हैं. इवन रेज्ड क्रॉप्स विद देयर ओन हैंड्स, मतलब वो क्रॉपिंग भी करती है. मतलब खेत में जब फसल आती है तो उसको हम क्या करते हैं, तो कट करते हैं. इवन दे कैन एजुकेट टू द अदर्स ऑल्सो, वो बाकी लोगों को भी क्या करते हैं, पढ़ाते हैं. एंड ड्रो कैटल्स, मतलब कैटल्स मतलब गाय, भैंसे, शिप्स, इनको भी क्या करते हैं, उनको चराते भी हैं, उनकी केयर भी करते हैं. मॉडर्न women have become mountaineers, naturalists, astronauts, scientists, soldiers and political leaders. अभी आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर वुमेन ने अपने आप को स्थापित किया है, मतलब साबित करके दिखाया गया है. So these are the important professions that in modern age women have been performing. Then this proves that there is nothing a woman cannot do, and also that women and men were created as equal. तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर men and women both are created equal. So okay, so in the next part remaining chapter we will continue in the next part. I hope you all have understood in a better